हाँ जी दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ CBSE 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करके बैल आइकन ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। शुरू करते हैं लैसन दुश्मनी। दुश्मनी ਇਹਦਾ मेन मोटिव लैसन ਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ। ਬੰਦਨਾ ਨੇ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਮਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਕੁਮਰਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੂਟੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਮਰੀਅਲ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਝੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਗਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ। ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬੱਦਲ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ। TV 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕਣੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਮਲੇ ਅਰਚਨਾ ਦੇ ਸਨ। ਅਰਚਨਾ ਚੋਪੜਾ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਸ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਰਿਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਮਲੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ DDA ਦੇ 3 ਮੰਜ਼ਲੇ ਫਲੈਟ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਟੈਰਿਸ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੰਦਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਂਕੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਵੰਦਨਾ ਭਾਟੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਬੰਨੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਚਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਬਾਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਰਚਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਵੰਦਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵੰਦਨਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੰਦਨਾ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ। ਪਲਾਂਟਸ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਟੈਂਕੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ। ਅਰਚਨਾ ਦੇ ਪਰਤਣ ਤੱਕ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਭਾਟੀਆ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੰਦਨਾ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਣਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ
इन्हां फ्लैटां दी छत्तां उपर रखियां पानी ਦੀਆਂ टैंकियां 5-500 लीटर ਦੀਆਂ ਸਨ। पानी की सप्लाई सिर्फ सुबह वेले एक वेले ही आउंदी सी। प्रैशर भी बहुत घੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। छत तक पानी पहुंचता ही नहीं सी। इस ਲਈ सबना ਦੇ 1000 लीटर की एक एक टैंकी फ्लैटां ਦੇ ਪਿੱਛੇ थल्ले रखा के मोटर पंप लाए होए सन। सुबह टैंकियां भर लईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। छत वालियां टैंकियां खाली होण ते मोटर चला के थल्ले वालियां टैंकियां विचों भर लईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। गर्मियों में कई बार पानी की किल्लत आ जाती, किसी दिन बिजली के कट कारण किसी होर वजह कारण सप्लाई ना आती तो मुश्किल हो जाती। वंदना के घर ये मुश्किल वधेरे आती। उन्हों का परिवार वड्डा सी। ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ इलावा सस सहुरा एक ਦਿਓਰ भी उसके नाल ही रहंदे सन। कई बार मेहमान आ जाण तां मुश्किल होर वध जाती सी। इस करके वंदना ਅਤੇ ਉਹਦੇ पति ने सलाह बनाई कि छत वाली टैंकी 500 लीटर की हटा के उत्ते 1000 लीटर की टैंकी रख देण। वो एक छुट्टी वाले दिन नवीं प्लास्टिक की टैंकी खरीद लियाए। प्लंबर नूं सद लिया। जदों टैंकी फिट कर लगे तो अर्चना के पति ने नहीं कहा कि वो हो गया। शायद वो टॉप फ्लोर पर रहने वाले अपने आप को शक्ति मालकन समझ लग पई सी। उस तो ये बर्दाश्त ना होया कि कोई उन्होंने बिना पुछे उसकी टैंकी ला रहा सी। उन्हें छत उत्ते आके उन्होंने टैंकी लाउण तो रोकने लड़ना शुरू कर दिता। तुसी ये टैंकी नहीं ला सकते, मैं तुहानू ये टैंकी नहीं लाण देंगी। वो उच्ची उच्ची बोलण लगी। वंदना ते उहदा पति हैरान रह गए। उन्होंने तो सोचा भी नहीं सी अर्चना उन्हें नाल लड़न आ जाएगी। उन्होंने उसनू समझाउण की बहुत कोशिश की। वंदना का पति संजीव बोलिया, असीं 2 टैंकियां नहीं ला रहे, असी अपनी छोटी टैंकी हटा के उसकी जगह पर नवीं टैंकी लगा रहे हैं। वंदना तरले करती हुई आख रही सी, आखि जैस तन लागे सो तन जाने। वंदना अर्चना ने एक ये ना सुनी। वो उसी तरह रौला पाउंदी रही। फिर उन्हें फोन करके अपने पति राहुल नूं सद लिया, जो उस वेले बाजार गया हुआ सी। फिर वो पति पत्नी दोवें उन्होंने लड़न लगे। रौला सुन के होर आंढी गुआढ़ी भी छत उपर चढ़ आए। उन्होंने भी दोहां धीरां नूं चुप कराउण की कोशिश की, पर राहुल बोलिया, फौरन नवीं टैंकी इत्थों हटा दिओ, नहीं तो असीं पुलिस नूं बुला लवांगे। संजीव और वंदना ने टैंकी हटाउण तो मना करता। राहुल ने सचमुच फोन करके पुलिस नूं बुला लिया। पुलिस आ गई। संजीव की टैंकी पुलिस के आउण तो पहला ही लग चुकी सी। पुलिस ने दोवां धिरां दी गल सुनी। हुण वेख्या कि राहुल उन्होंने नवीं वाली टैंकी नूं हटाउणा चाहुंदे, तो वो अपने आप उन्हां होर टैंकी गमलिਆਂ नूं पानी देण दी छत ते रख लई सी। पुलिस वालियां ने दोवां नूं समझाया कि उन्हां दा समझौता करवा दिता। संजीव की टैंकी उस तरह लगी रहन दित्ती। भावें वो समझौता हो गया, पर दोवां ने पुलिस सामने हथ मिला लए। पर दोहां परिवारां विच पहला वाला मेल मिलाप ना रहा। उन्हां दी बोलचाल बंद हो गई। इस गल नूं 4-5 महीने हो गए। हुण गर्मी दी छुट्टियां आईयां तो फिर राहुल चोपड़ा अपने पूरे परिवार नाल किते बाहर चला गया। इस बार पहला ना तो अर्चना ने वंदना नूं ये दस्सिया कि वह कित्थे ते किन्ने दिनां वास्ते जा रही है, ना उसने कहा कि फुल्लां नूं पानी पाउणा। इत्थे गल दुश्मनी दी है। मैं तुहानूं बच्चों देखते समझाउण दी कोशिश करा। इत्थे फुल स्टॉप ला के देखो, इत्थे दुश्मनी बहुत वध गई है। सिर्फ एक पानी की टैंकी अते एक लड़ाई वध चुकी है। हुण बूटिਆਂ ਨੂੰ कोई पानी नहीं पाउंदा। वो जिहड़ी पहलां वाली स्टोरी सी भी मुरझाए फुल्लां नूं देख के जिहड़ी वंदना रो रही है, मतलब उपर देख रही है कि मीह पाएगा नहीं पाएगा, अपने आप मीह नूं पानी पै जाए, वो पानी नहीं पा सकती क्योंकि उन्हां विच लड़ाई हुई है। ये इत्थे समझाया। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ पढ़ते हैं। वंदना नूं इस गल का गुस्सा सी कि अर्चना उसनूं आकड़ दी मारी आख के भी नहीं गई। इसलिए वो बूटिਆਂ नूं पानी नहीं देवेगी। पहला तो उन्हें सोचा कि शायद किसी दूजे गुआढ़ी नूं कह गई होवेगी, शायद कोई ना कोई ताकि गमलिਆਂ 'ਚ पानी पा जाए। फिर उन्हें वेख्या 3-4 दिन तक किसी ने गमलिਆਂ ਨੂੰ पानी नहीं दिता। बूटे घुमला गए सन। ये तो देखो घुमला गए बूटे। और मतलब जो पानी ना दईए बूटिਆਂ ਨੂੰ वो घुमला जाते हैं ना। ये सेम इत्थे होया। फिर वो फिक्रमंद हो गई। फिर वो सोचती रही कि हो सकता है कि एक बार वो छेती वापस आ जाए। इस बार ठीक है,
एक दिन आसमान की छाई घटा नूं वेख के वो सोच के शायद अज भल मीह आ जाए, बूटिਆਂ ਨੂੰ पानी देना ही ना पवे। एक दिन वो अपनी पति नूं कहा, हाय वेखो अर्चना ने सारे प्लांट्स सुक गए ने, कोई पानी नहीं पा रहा, मैं तो आप लिए पाउंदी पानी, मैनू किहड़ा वो कह के गई है, जे उन्हें इन्नी आकड़ है तो वो प्लांट्स साडे की लगते ने, सुकते पे तो सुकन सानू की। संजीव चुप-चाप सुनता रहा तो फिर वो हाँ विच हाँ मिलाउंदा बोलिया, आपां की लैना उहदे बगीचे तो, सुक जाण दे परां। उदों किवें बोलदी सी चवर चवर, टेंशन लैण दी कोई लोड़ नहीं। पर वंदना छत उत्ते जांदी तो उह सुक रहे बूटिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ तरस आउंदा, पर अगले दिन ही पर उसनूं गुस्सा चढ़ जांदा कि मैं की लैण। लगभग एक हफ्ता हो गया, ना किसी गवांढी ने बूटिਆਂ ਨੂੰ पानी पाया, ना ही अर्चना मुड़ी ते ना मीह आया। बंदरा ने आसमान वाल वेख्या, आसमान साफ सी, बदलों का भी किधरों नामो निशान नहीं सी। गर्मी में झुलस रहे बूटे, कई छोटे बूटे बिल्कुल सुक गए सन। वेख के बंदना तो रहा ना गया, वो मन तो बहुत ज़्यादा दयालु सी। हुण इत्थे लास्ट सीन आ रहा वा, सिट्टा निकलूगा की है लैसन का, दुश्मनी लैसन का। उसने मन मन में सोचिया, एवें गिला पी नहीं पाईदा, चलो हो छड्ड परे। उन्हें टैंकी कोल मुद्दी पई, बाल्टी चुकी तो टैंकी खोल के बूटिਆਂ ਨੂੰ पानी देन लगी। जो बंदना ਨੂੰ काफ़ी चिर हो गया, संजीव ਨੂੰ चिंता होने लगी कि बंदना सुक्के कपड़े उतार ली, अजे तक वापस नहीं आया। बंदना ਨੂੰ वेख के वो छत उत्ते आ गया। वो गमलिਆਂ ਨੂੰ पानी ਦੇ बंदना ਨੂੰ देख के हक्का बक्का रह गया। इस तो इलावा वो बंदना ਨੂੰ कुछ कहता, वो संजीव ਨੂੰ वेख के बोली, मैं सोचिया वो तो है ही इहो जी, अपनी लड़ाई तो उन्होंने नाल है, इन्हां विचारे प्लांट्स का तो साडी कोई दुश्मनी नहीं। हुण सुन के संजीव वाह वाह कहता मुस्कुराउण लग गया। इत्थे देखो उन्होंने लास्ट में जाके पता लग गया कि साडी लड़ाई इंसानां दे नाल आ, इन्हां प्लांट्स दे नाल, इन्हां बूटिਆਂ दे नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं हैगी। इहदा सिट्टा की निकलिया टिप्पणी तुहानूं ओह दस दिया। दुश्मनी कुदरत नूं समर्पित कहानी है। इस विचाले दिल्ली वर्गे महानगरी जीवन च पौद्यां की महत्ता नूं बाखूबी दर्शाउण दा यतन किया। इत्थे देखो दिल्ली वर्गे जिहड़ा एक वड्डा राज है, वड्डा महानगर है, इत्थे विच इन्हां नूं जीवन दे विच बूटिਆਂ की महत्ता नूं दर्शाउण दा यतन किया गया है। इसने कथानक विच दो परिवार इसके पात्र सन, पर एक कहानी अर्चना चोपड़ा ते बंदना भाटिया के कार विहार विचाए घूमती रही। दूजे पासे फुल बूटे इसके केंद्र सन। उपरोक्त दोवें पात्र पौद्यां नूं प्यार करते सन। दोवां की आपसी दोस्ती भी गूढ़ी सी, पर अक्सर टैरिस उपर गमलिਆਂ विच फुल बूटे लाए हुए सन। पर उन्होंने सवाल जिहड़ी सीगी वो वंदना भी करती सी, पर उन्होंने विच लड़ाई हो गई सी, तां करके अर्चना चोपड़ा उन्होंने दस के नहीं गई कि वो जा रही है। तो फुल बूटे 5 दिन कमलाउंदे रहे। तो उस तो बाद जदों उहदे मन बहुत दयालु सी अर्चना वंदना का, तो फिर उसने बूटे को पानी दिता ते उसने अपनी दुश्मनी बूटिਆਂ ਨਾਲ खत्म की। वो कहती दुश्मनी साडी इंसानां दे नाल है, दरख्तां दे नाल नहीं। ठीक है, हुण बूटिਆਂ ਨੂੰ पानी देण 'ਚ राजी हो गई सी। ये बलविंदर सिंह बराड़ की कहानी है। ठीक है, जेकर वीडियो वधिया लगी लाइक करियो, शेयर करियो अपने दोस्तों के नाल। हुण आपां इन्हां दे प्रश्न देखते हैं। अर्चना चोपड़ा किहड़े फ्लोर पर रहिंदी सी? टॉप फ्लोर पर रहिंदी सी। ठीक है, अर्चना चोपड़ा किहड़े फ्लोर पर रहिंदी सी? वंदना ने छत पर वाधू टैंकी क्यों रखी सी? वंदना ने छत पर वाधू टैंकी गमलिਆਂ टैरिस के बूटिਆਂ ਨੂੰ गमलिਆਂ ਵਿੱਚ पानी देण लई रखी सी। अर्चना ਅਤੇ वंदना मिल के किहो जिहियां गल्लां करदियां? अर्चना ते वंदना कदे बूटिਆਂ ਦੀਆਂ, कदे आसमान वाल देख के इधर उधर ਦੀਆਂ गल्लां करदियां रहंदियां। दोवां गुणां ਵਿੱਚ अरबन का की कारण सी, अनबन का की कारण सी? पानी वाली टैंकी, क्योंकि पानी की किल्लत आउंदी सी, सवेरे शाम सुबह वेले पानी आउंदा सी, इस करके उन्होंने 500 की जगह 1000 लीटर की टैंकी रखनी सी। लेकिन टॉप फ्लोर पर रहने वाली अर्चना चोपड़ा ने उन्होंने टैंकी ना रखन दी, उन्होंने लड़ाई हो गई सी, पुलिस तक मामला पहुँच गया सी। ठीक है, तुसी ये टैंकी नहीं ला सकते, मैं तुहानूं ये टैंकी नहीं लाण देंगी। ये शब्द किसने किसनूं कहे? ये शब्द वंदना चोपड़ा ने, सॉरी अर्चना चोपड़ा ने वंदना दे पति नूं कहे। क्यों कहे?
क्योंकि ही इस करके कही कि वो टैंकी नहीं लाती, वो अपने आप को टॉप फ्लोर की मालकन समझ लग पई सी। ठीक है, आसमान में घटा छाउण के बंदर के मन च इसके विचार की पैंदे, घटा छाउण के मन च ये पैंदे कि उसनूं बूटिਆਂ ਨੂੰ पानी ना देना पवेगा, अपने आप मींह आ जाएगा। ठीक है, पुलिस ਨੂੰ कौन बुलाਉਂਦਾ पे क्यों? पुलिस ਨੂੰ आसरा का पति राहुल चोपड़ा बुलाਉਂਦਾ। ठीक है, क्यों बुलाਉਂਦਾ? उन्होंने शिकायत करने वास्ते कि वो साड़ी बिना इजाजत तो टैंकी रख रहे हैं। ठीक है, बंदर पौधों को पानी देने लिए क्यों राजी होगी? बंदर सब तो लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, बंदर पौधों को पानी देने लिए इस करके तैयार होगी क्योंकि वो कहती कि साड़ी दुश्मनी इन्होंने बूटियां के नाल नहीं है, साड़ी दुश्मनी बंदियां के नाल है। ठीक है, इस करके वो मन बहुत दयालु सी, इस करके वो बूटियां को पानी देने के लिए राजी होगी। ये सी अपना लैसन दुश्मनी। नैक्सट लैसन की एक नवी वीडियो में मिलांगे, जब तक धन्यवाद।